Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, this is Nitin Sharma, and in the previous lecture we have completed our introduction part on triangle. We have seen that what is triangle and the classification on the basis of triangle on the basis of their sides. And we have learned there are three types of triangle. First one is equilateral triangle, in which all the three sides are of same length. Second one is isosceles triangle, in which any two sides are of same length and the third side is of different length. And the last one is scalene triangle. Scalene triangle are of the length of different. All the sides are of different length, and such type of triangle is called scalene triangle. And today आज हम क्या देखेंगे? That is classification of triangle on the basis of angles. Clear? अभी तक हमने क्या देखा? On the basis of sides. So first triangle on the basis of angle is acute angle triangle. Acute angled triangle. So first हम इसकी definition देख लेते हैं. If all the three angles of a triangle are acute. Acute means if all the three angles of a triangle are acute. Acute means less than 90. कैसे होंगे? Less than 90 degree. Then we call it acute angle triangle. Acute angle triangle. फिर से एक बार डेफिनेशन देखते हैं. If all the three angles of a triangle are acute, acute means which is less than, strictly less than 90, we call it acute angle triangle. कोई ट्राइंगल के तीनों एंगल, all the three angles अगर less than 90 होते हैं तो हम ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? acute angle triangle. क्लियर? सो हम डायग्राम देख लेते हैं. यहाँ पे here ट्राइंगल A B C, जो तीनों के तीनों एंगल हैं, all the three angles are less than 90 degree, then triangle ABC is a acute angle triangle. Clear? जो तीनों के तीनों एंगल है, that is 1, 2 and 3. All the three angles are of measure less than 90 degree. Clear? So first type is acute angle triangle. Second one is obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle. Okay, so first हम इसकी definition देख लेते हैं. If one of the angle of a triangle is obtuse. Obtuse means more than 90. Obtuse means more than 90 degree. If one of the angles of a triangle is obtuse, means more than 90 degree, we call it obtuse angle triangle. डेफिनेशन देख लेते एक बार. उस acute angle triangle में क्या था आपका? अगर all three angles क्या होने चाहिए आपके? स्ट्रिक्टली acute होने चाहिए, तभी आप उस एंगल को क्या बोलोगे? acute angle triangle. लेकिन obtuse angle triangle में क्या है? अगर कोई एक एंगल ट्राइंगल का obtuse होता है, मींस मोर देन 90 डिग्री होता है, तब हम उस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे? obtuse angle triangle. डायग्राम के थ्रू समझते हैं. ओके, A B C. यहाँ पे आप एंगल बी देख पा रहे हो. अगर 90 होता तो ये स्ट्रेट लाइन होती,
लेकिन ये मोर देन 90 डिग्री है। मोर देन 90 को ही हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ओके, सो ये आपका जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके, बिकॉज हियर एंगल B इज मोर देन 90 डिग्री। इज इट क्लियर? एंड द लास्ट वन इज राइट एंगल ट्राइंगल। इसकी डेफिनेशन आपको पता होगी। इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 90 डिग्री, if one of the angle of a triangle is 90 degree, then we call it right angle triangle। क्या है डेफिनेशन में? अगर कोई ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल, एनी वन ऑफ एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, देन वी कॉल इट राइट एंगल ट्राइंगल। डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। Here triangle ABC is a right angle triangle because here angle B is of measure 90 degree। तो हमें कोई एक ही एंगल चाहिए जो क्या होना चाहिए, मेजर 90 डिग्री का होना चाहिए। इज इट क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे अबाउट मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, नाउ अब हम देखते हैं अबाउट मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। सो यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल गिवन है, दैट इज ट्राइंगल ABC। इसके अगर हम साइड्स की बात करें तो कितने साइड्स होती है, दैट इज 3, दैट इज AB, BC एंड CA। और वर्टिसेस कितनी है आपके, 3 वर्टिसेस। दैट इज वर्टिसेस क्या होती है आपकी, जहां पे 2 लाइन सेगमेंट मीट करती हैं, ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। सो यहाँ पे वर्टेक्स कौन कौन से हैं, A, B एंड C। सो हियर ABC इज अ ट्राइंगल विथ A, B एंड C आर द vertices of the triangle। ABC क्या है, उसके vertices। Now BC is the side which is opposite to the vertex A। अब BC साइड आपको कहां दिख रही है, that is vertex A के अपोजिट साइड जो है वो BC साइड है। इसी तरह AC साइड किसके अपोजिट है, vertex B के। एंड AB साइड किसके अपोजिट है, vertex C के। इज इट क्लियर? तो वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड आपको कौन सी मिल रही है, BC। इज इट क्लियर? सो BC इज द साइड विच इज अपोजिट टू द वर्टेक्स A। नेक्स्ट वन इज इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब अगर मैंने कोई D पॉइंट ले लिया, अब ये लाइन नहीं है ऐसा समझ लीजिए, D मैंने किसका ले लिया, मिड पॉइंट BC का। BC एक लाइन सेगमेंट है, D उसका मैंने मिड पॉइंट ले लिया। मिड पॉइंट मींस BD इज इक्वल टू DC। जो B से D तक का डिस्टेंस होगा वही D से C तक का डिस्टेंस होगा। मींस इस लाइन को 2 इक्वल हाफ्स में किसने किया है, पॉइंट D में। सो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। देन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड D इज कॉल्ड अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। तो ऐसी लाइन सेगमेंट जो किसको ज्वाइन करे, पॉइंट A एंड पॉइंट D को, उसी लाइन सेगमेंट को मैं क्या बोलूंगा, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। सो हियर AD line is nothing but this is a median of triangle ABC। क्यों? आपको ऐसी लाइन सेगमेंट चाहिए जो उसके अपोजिट वर्टेक्स को 2 इक्वल पार्ट्स में कर दे, मींस BD इक्वल टू DC। सो यहाँ पे D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC था। देन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट AD, उसने क्या कर दिया, इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में कर दिया। सो इसलिए हम AD को क्या बोलेंगे, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ABC। तो ये है आपकी मीडियन की डेफिनेशन। दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ मीडियन। अ मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स, किसको कनेक्ट करती है, एक वर्टेक्स को, अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। किससे कनेक्ट करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड।
तो यहाँ पे मैं कौन से वर्टेक्स की बात कर रहा हूं, वर्टेक्स ए, और उसका अपोजिट साइड कौन सा है, BC, और वो उसको किसको कनेक्ट करेगी, उसके मिड पॉइंट को कनेक्ट करेगी। ऐसी लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ABC। अब क्या इसका एक ही मीडियन पॉसिबल है, नो। अगर हम B से भी AC कर B वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड कौन सी मिलेगी, AC, अगर उस पे भी मैं मिड पॉइंट पे लाई करूं, जैसे AC का मैंने मिड पॉइंट ले लिया से E क्या है, AC का मिड पॉइंट है, और अगर लाइन सेगमेंट में BE ड्रॉ करूं तो BEB पॉइंट आपको क्या मिलेगा, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ABC। अब नेक्स्ट वन कौन सा बचा आपका, वर्टेक्स C। अगर C से मैं उसके अपोजिट साइड, मीडियन की डेफिनेशन देखो, अ मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। तो ये रहा वर्टेक्स, इसका अपोजिट साइड कौन सा है, AB, और अगर मैंने इसका मिड पॉइंट ले लिया से F इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB, और अगर लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है AF, दैट इज CF, तो अगेन CF भी आपका क्या हो गया, मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ABC। और जहां पे ये तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसे पॉइंट को हम, जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। सो मीडियन क्लियर हुआ, ये है मीडियन की डेफिनेशन, अ मीडियन connects a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side, उसे हम क्या बोलते हैं, median of a triangle। Is it clear?